گرم پانی گرا دیتا ہے، تب بیچاری ساری جل جاتی ہے۔ اور تب وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے اسے اس گھر میں رہنے کی اجازت کیوں دی؟ اس گھر میں صرف وہی بندہ رہ سکتا ہے جس کو میں اجازت دوں، اور اس کو ابھی کے ابھی اس گھر سے نکالیں۔ تو تبھی اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو، لیکن وہ مجبور ہوتی ہے اور کبیر کے کہنے پہ اسے گھر سے جانے کا بول دیتی ہے۔ دوستوں، مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ مدیہ روحام کو ہر طرح سے یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی اور نہیں ہے، اور جب سے شادی ہوئی ہے وہ صرف اسی کے ساتھ سنسیئر ہے، لیکن روحام اس کی کسی بات پہ یقین نہیں کرتا اور مزید اس پہ شک کیے چلے جاتا ہے۔ اور تبھی وہ کہتی ہے کہ اگر تمہاری میری زندگی میں کوئی گنجائش نہیں ہے تو پھر تم مجھے میری ماں کے گھر چھوڑا۔ جب وہ اسے اس کی ماں کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوتا ہے تو وہ راستے میں ہی نکل پڑتی ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ شاید وہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ روحام کی والدہ مسلسل ملیحہ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا نمبر آف جا رہا ہوتا ہے۔ تو تب جب وہ روحام سے پوچھتی ہے تو تب وہ اسے ساری بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ملیحہ سے بہت زیادہ ناراض ہوں، اور تب اس کے بارے میں غلط بات کرتا ہے تو اس کی ماں منع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ملیحہ اتنی اچھی لڑکی ہے اور تم اس کے بارے میں غلط بات کیسے کر سکتے ہو؟ میں اس کی اجازت تمہیں بالکل نہیں دوں گی۔ اور مزید وہ اسے بتاتی ہے کہ اس کا تو نمبر ہی آف جا رہا ہے، تب روحام اسے کال کرے گا تو وہ اپنا نمبر ڈیلیٹ کر چکی ہوگی۔ تبھی روحام بہت زیادہ ٹینشن میں آ جائے گا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو کبیر ہوتا ہے وہ ملیحہ کے ساتھ اتنا زیادہ برا سلوک کر رہا ہوتا ہے، تو تبھی ثنا کہتی ہے کہ اگر میرا اس گھر سے کوئی نہیں ہے تو مجھے یہاں سے جانے دیا جائے۔ تبھی اس کی ساس کہتی ہے کہ نہیں، تم اس گھر میں ہی رہو گی۔ اور جب وہ کمرے میں آرام کر رہی ہوتی ہے تو کبیر اوپر سے آ جاتا ہے اور اس کے اوپر گرم پانی گرا دیتا ہے، تب بیچاری ساری جل جاتی ہے۔ اور تب وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے اسے اس گھر میں رہنے کی اجازت کیوں دی؟ اس گھر میں صرف وہی بندہ رہ سکتا ہے جس کو میں اجازت دوں، اور اس کو ابھی کے ابھی اس گھر سے نکالیں۔ تو تبھی اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو، لیکن وہ مجبور ہوتی ہے اور کبیر کے کہنے پہ اسے گھر سے جانے کا بول دیتی ہے۔ دوستوں، مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ مدیہ روحام کو ہر طرح سے یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی اور نہیں ہے، اور جب سے شادی ہوئی ہے وہ صرف اسی کے ساتھ سنسیئر ہے، لیکن روحام اس کی کسی بات پہ یقین نہیں کرتا اور مزید اس پہ شک کیے چلے جاتا ہے۔ اور تبھی وہ کہتی ہے کہ اگر تمہاری میری زندگی میں کوئی گنجائش نہیں ہے تو پھر تم مجھے میری ماں کے گھر چھوڑا۔ جب وہ اسے اس کی ماں کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوتا ہے تو وہ راستے میں ہی نکل پڑتی ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ شاید وہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ روحام کی والدہ مسلسل ملیحہ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا نمبر آف جا رہا ہوتا ہے۔ تو تب جب وہ روحام سے پوچھتی ہے تو تب وہ اسے ساری بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ملیحہ سے بہت زیادہ ناراض ہوں، اور تب اس کے بارے میں غلط بات کرتا ہے تو اس کی ماں منع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ملیحہ اتنی اچھی لڑکی ہے اور تم اس کے بارے میں غلط بات کیسے کر سکتے ہو؟ میں اس کی اجازت تمہیں بالکل نہیں دوں گی۔ اور مزید وہ اسے بتاتی ہے کہ اس کا تو نمبر ہی آف جا رہا ہے، تب روحام اسے کال کرے گا تو وہ اپنا نمبر ڈیلیٹ کر چکی ہوگی۔ تبھی روحام بہت زیادہ ٹینشن میں آ جائے گا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو کبیر ہوتا ہے وہ ملیحہ کے ساتھ اتنا زیادہ برا سلوک کر رہا ہوتا ہے، تو تبھی ثنا کہتی ہے کہ اگر میرا اس گھر سے کوئی نہیں ہے تو مجھے یہاں سے جانے دیا جائے۔ تبھی اس کی ساس کہتی ہے کہ نہیں، تم اس گھر میں ہی رہو گی۔ اور جب وہ کمرے میں آرام کر رہی ہوتی ہے تو کبیر اوپر سے آ جاتا ہے اور اس کے اوپر گرم پانی گرا دیتا ہے، تب بیچاری ساری جل جاتی ہے۔ اور تب وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے اسے اس گھر میں رہنے کی اجازت کیوں دی؟ اس گھر میں صرف وہی بندہ رہ سکتا ہے جس کو میں اجازت دوں، اور اس کو ابھی کے ابھی اس گھر سے نکالیں۔ تو تبھی اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو، لیکن وہ مجبور ہوتی ہے اور کبیر کے کہنے پہ اسے گھر سے جانے کا بول دیتی ہے۔ دوستوں، مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔
मदिया रुहाम को हर तरह से यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है और जब से शादी हुई है वो सिर्फ उसी के साथ सिंसियर है, लेकिन रुहाम उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता और मज़ीद उस पे शक किए चले जाता है। और तभी वो कहती है कि अगर तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में कोई गुंजाइश नहीं है तो फिर तुम मुझे मेरी माँ के घर छोड़ो। जब वो उसे उसकी माँ के घर छोड़ने जा रहा होता है तो वो रास्ते में ही निकल पड़ती है और उसको लगता है कि शायद वो अपनी माँ के घर चली गई है। मज़ीद आप देखेंगे कि रुहाम की वालदा मुसलसल मलिहा से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका नंबर ऑफ जा रहा होता है। तो तब जब वो रुहाम से पूछती है तो तब वो उसे सारी बात बताता है और कहता है कि मैं मलिहा से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ और तब उसके बारे में गलत बात करता है। तो उसकी माँ मना करती है और कहती है कि मलिहा इतनी अच्छी लड़की है और तुम उसके बारे में गलत बात कैसे कर सकते हो? मैं इसकी इजाज़त तुम्हें बिल्कुल नहीं दूँगी। और मज़ीद वो उसे बताती है कि उसका तो नंबर ही ऑफ जा रहा है, तब रुहाम उसे कॉल करेगा तो वो अपना नंबर डिलीट कर चुकी होगी। तभी रुहाम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो कबीर होता है वो मलिहा के साथ इतना ज़्यादा बुरा सलूक कर रहा होता है, तो तभी सना कहती है कि अगर मेरा इस घर से कोई नहीं है तो मुझे यहाँ से जाने दिया जाए। तभी उसकी सास कहती है कि नहीं, तुम इस घर में ही रहोगी। और जब वो कमरे में आराम कर रही होती है तो कबीर ऊपर से आ जाता है और उसके ऊपर गर्म पानी गिरा देता है। तब बेचारी सारी जल जाती है और तब वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि आपने इसे इस घर में रहने की इजाज़त क्यों दी? इस घर में सिर्फ वही बंदा रह सकता है जिसको मैं इजाज़त दूँ और इसको अभी के अभी इस घर से निकालें। तो तभी उसकी माँ कहती है कि ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, लेकिन वो मजबूर होती है और कबीर के कहने पे उसे घर से जाने का बोल देती है। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। मदिया रुहाम को हर तरह से यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है और जब से शादी हुई है वो सिर्फ उसी के साथ सिंसियर है, लेकिन रुहाम उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता और मज़ीद उस पे शक किए चले जाता है। और तभी वो कहती है कि अगर तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में कोई गुंजाइश नहीं है तो फिर तुम मुझे मेरी माँ के घर छोड़ो। जब वो उसे उसकी माँ के घर छोड़ने जा रहा होता है तो वो रास्ते में ही निकल पड़ती है और उसको लगता है कि शायद वो अपनी माँ के घर चली गई है। मज़ीद आप देखेंगे कि रुहाम की वालदा मुसलसल मलिहा से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका नंबर ऑफ जा रहा होता है। तो तब जब वो रुहाम से पूछती है तो तब वो उसे सारी बात बताता है और कहता है कि मैं मलिहा से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ और तब उसके बारे में गलत बात करता है। तो उसकी माँ मना करती है और कहती है कि मलिहा इतनी अच्छी लड़की है और तुम उसके बारे में गलत बात कैसे कर सकते हो? मैं इसकी इजाज़त तुम्हें बिल्कुल नहीं दूँगी। और मज़ीद वो उसे बताती है कि उसका तो नंबर ही ऑफ जा रहा है, तब रुहाम उसे कॉल करेगा तो वो अपना नंबर डिलीट कर चुकी होगी। तभी रुहाम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो कबीर होता है वो मलिहा के साथ इतना ज़्यादा बुरा सलूक कर रहा होता है, तो तभी सना कहती है कि अगर मेरा इस घर से कोई नहीं है तो मुझे यहाँ से जाने दिया जाए। तभी उसकी सास कहती है कि नहीं, तुम इस घर में ही रहोगी। और जब वो कमरे में आराम कर रही होती है तो कबीर ऊपर से आ जाता है और उसके ऊपर गर्म पानी गिरा देता है। तब बेचारी सारी जल जाती है और तब वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि आपने इसे इस घर में रहने की इजाज़त क्यों दी? इस घर में सिर्फ वही बंदा रह सकता है जिसको मैं इजाज़त दूँ और इसको अभी के अभी इस घर से निकालें। तो तभी उसकी माँ कहती है कि ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, लेकिन वो मजबूर होती है और कबीर के कहने पे उसे घर से जाने का बोल देती है। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। मदिया रुहाम को हर तरह से यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है और जब से शादी हुई है वो सिर्फ उसी के साथ सिंसियर है, लेकिन रुहाम उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता और मज़ीद उस पे शक किए चले जाता है। और तभी वो कहती है कि अगर तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में कोई गुंजाइश नहीं है तो फिर तुम मुझे मेरी माँ के घर छोड़ो। जब वो उसे उसकी माँ के घर छोड़ने जा रहा होता है तो वो रास्ते में ही निकल पड़ती है और उसको लगता है कि शायद वो अपनी माँ के घर चली गई है। मज़ीद आप देखेंगे कि रुहाम की वालदा मुसलसल मलिहा से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका नंबर ऑफ जा रहा होता है।
तो तब जब वो रुहाम से पूछती है तो तब वो उसे सारी बात बताता है और कहता है कि मैं मलिया से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। और तब उसके बारे में गलत बात करता है तो उसकी माँ मना करती है और कहती है कि मलिया इतनी अच्छी लड़की है और तुम उसके बारे में गलत बात कैसे कर सकते हो, मैं इसकी इजाज़त तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगी। और मज़ीद वो उसे बताती है कि उसका तो नंबर ही ऑफ जा रहा है, तब रुहाम उसे कॉल करेगा तो वो अपना नंबर डिलीट कर चुकी होगी। तभी रोहम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो कबीर होता है वो मलिहा के साथ इतना ज़्यादा बुरा सलूक कर रहा होता है, तो तभी सना कहती है कि अगर मेरा इस घर से कोई नहीं है तो मुझे यहाँ से जाने दिया जाए। तभी उसकी सास कहती है कि नहीं, तुम इस घर में ही रहोगी। और जब वो कमरे में आराम कर रही होती है तो कबीर ऊपर से आ जाता है और उसके ऊपर गर्म पानी गिरा देता है। तब बेचारी सारी जल जाती है और तब वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि आपने इसे इस घर में रहने की इजाज़त क्यों दी? इस घर में सिर्फ वही बंदा रह सकता है जिसको मैं इजाज़त दूँ, और इसको अभी के अभी इस घर से निकालें। तो तभी उसकी माँ कहती है कि ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, लेकिन वो मजबूर होती है और कबीर के कहने पे उसे घर से जाने का बोल देती है। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। मदिया रुहाम को हर तरह से यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है और जब से शादी हुई है वो सिर्फ उसी के साथ सिंसेयर है, लेकिन रुहाम उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता और मज़ीद उस पे शक किए चले जाता है। और तभी वो कहती है कि अगर तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में कोई गुंजाइश नहीं है तो फिर तुम मुझे मेरी माँ के घर छोड़ो। जब वो उसे उसकी माँ के घर छोड़ा नहीं जा रहा होता है तो वो रास्ते में ही निकल पड़ती है और उसको लगता है कि शायद वो अपनी माँ के घर चली गई है। मज़ीद आप देखेंगे कि रुहाम की वालदा मुसलसल मलिहा से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका नंबर ऑफ जा रहा होता है। तो तब जब वो रुहाम से पूछती है तो तब वो उसे सारी बात बताता है और कहता है कि मैं मलिहा से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। और तब उसके बारे में गलत बात करता है तो उसकी माँ मना करती है और कहती है कि मलिहा इतनी अच्छी लड़की है और तुम उसके बारे में गलत बात कैसे कर सकते हो? मैं इसकी इजाज़त तुम्हें बिल्कुल नहीं दूँगी। और मज़ीद वो उसे बताती है कि उसका तो नंबर ही ऑफ जा रहा है, तब रुहाम उसे कॉल करेगा तो वो अपना नंबर डिलीट कर चुकी होगी। तभी रुहाम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो कबीर होता है वो मलिहा के साथ इतना ज़्यादा बुरा सलूक कर रहा होता है, तो तभी सना कहती है कि अगर मेरा इस घर से कोई नहीं है तो मुझे यहाँ से जाने दिया जाए। तभी उसकी सास कहती है कि नहीं, तुम इस घर में ही रहोगी। और जब वो कमरे में आराम कर रही होती है तो कबीर ऊपर से आ जाता है और उसके ऊपर गर्म पानी गिरा देता है। तब बेचारी सारी जल जाती है और तब वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि आपने इसे इस घर में रहने की इजाज़त क्यों दी? इस घर में सिर्फ वही बंदा रह सकता है जिसको मैं इजाज़त दूँ, और इसको अभी के अभी इस घर से निकालें। तो तभी उसकी माँ कहती है कि ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, लेकिन वो मजबूर होती है और कबीर के कहने पे उसे घर से जाने का बोल देती है। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। मदिया रुहाम को हर तरह से यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है और जब से शादी हुई है वो सिर्फ उसी के साथ सिंसेयर है, लेकिन रुहाम उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता और मज़ीद उस पे शक किए चले जाता है। और तभी वो कहती है कि अगर तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में कोई गुंजाइश नहीं है तो फिर तुम मुझे मेरी माँ के घर छोड़ो। जब वो उसे उसकी माँ के घर छोड़ा नहीं जा रहा होता है तो वो रास्ते में ही निकल पड़ती है और उसको लगता है कि शायद वो अपनी माँ के घर चली गई है। मज़ीद आप देखेंगे कि रुहाम की वालदा मुसलसल मलिहा से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका नंबर ऑफ जा रहा होता है। तो तब जब वो रुहाम से पूछती है तो तब वो उसे सारी बात बताता है और कहता है कि मैं मलिहा से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। और तब उसके बारे में गलत बात करता है तो उसकी माँ मना करती है और कहती है कि मलिहा इतनी अच्छी लड़की है और तुम उसके बारे में गलत बात कैसे कर सकते हो? मैं इसकी इजाज़त तुम्हें बिल्कुल नहीं दूँगी। और मज़ीद वो उसे बताती है कि उसका तो नंबर ही ऑफ जा रहा है, तब रुहाम उसे कॉल करेगा तो वो अपना नंबर डिलीट कर चुकी होगी। तभी रुहाम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो कबीर होता है वो
मलिहा के साथ इतना ज़्यादा बुरा सलूक कर रहा होता है, तो तभी सना कहती है कि अगर मेरा इस घर से कोई नहीं है तो मुझे यहाँ से जाने दिया जाए। तभी उसकी सास कहती है कि नहीं, तुम इस घर में ही रहोगी। और जब वो कमरे में आराम कर रही होती है तो कबीर ऊपर से आ जाता है और उसके ऊपर गर्म पानी गिरा देता है। तब बेचारी सारी जल जाती है और तब वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि आपने इसे इस घर में रहने की इजाज़त क्यों दी? इस घर में सिर्फ वही बंदा रह सकता है जिसको मैं इजाज़त दूँ, और इसको अभी के अभी इस घर से निकालें। तो तभी उसकी माँ कहती है कि ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, लेकिन वो मजबूर होती है और कबीर के कहने पे उसे घर से जाने का बोल देती है। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। मदीहा रुहाम को हर तरह से यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है, और जब से शादी हुई है वो सिर्फ उसी के साथ सिंसेयर है। लेकिन रुहाम उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता और मज़ीद उस पे शक किए चले जाता है। और तभी वो कहती है कि अगर तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में कोई गुंजाइश नहीं है तो फिर तुम मुझे मेरी माँ के घर छोड़ो। जब वो उसे उसकी माँ के घर छोड़ने जा रहा होता है तो वो रास्ते में ही निकल पड़ती है और उसको लगता है कि शायद वो अपनी माँ के घर चली गई है। मज़ीद आप देखेंगे कि रुहाम की वालदा मुसलसल मलिहा से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका नंबर ऑफ जा रहा होता है। तो तब जब वो रुहाम से पूछती है तो तब वो उसे सारी बात बताता है और कहता है कि मैं मलिहा से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, और तब वो उसके बारे में गलत बात करता है। तो उसकी माँ मना करती है और कहती है कि मलिहा इतनी अच्छी लड़की है और तुम उसके बारे में गलत बात कैसे कर सकते हो? मैं इसकी इजाज़त तुम्हें बिल्कुल नहीं दूँगी। और मज़ीद वो उसे बताती है कि उसका तो नंबर ही ऑफ जा रहा है, तब रुहाम उसे कॉल करेगा तो वो अपना नंबर डिलीट कर चुकी होगी। तभी रुहाम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो कबीर होता है वो मलिहा के साथ इतना ज़्यादा बुरा सलूक कर रहा होता है, तो तभी सना कहती है कि अगर मेरा इस घर से कोई नहीं है तो मुझे यहाँ से जाने दिया जाए। तभी उसकी सास कहती है कि नहीं, तुम इस घर में ही रहोगी। और जब वो कमरे में आराम कर रही होती है तो कबीर ऊपर से आ जाता है और उसके ऊपर गर्म पानी गिरा देता है। तब बेचारी सारी जल जाती है और तब वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि आपने इसे इस घर में रहने की इजाज़त क्यों दी? इस घर में सिर्फ वही बंदा रह सकता है जिसको मैं इजाज़त दूँ, और इसको अभी के अभी इस घर से निकालें। तो तभी उसकी माँ कहती है कि ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, लेकिन वो मजबूर होती है और कबीर के कहने पे उसे घर से जाने का बोल देती है। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। मदीहा रुहाम को हर तरह से यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है, और जब से शादी हुई है वो सिर्फ उसी के साथ सिंसेयर है। लेकिन रुहाम उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता और मज़ीद उस पे शक किए चले जाता है। और तभी वो कहती है कि अगर तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में कोई गुंजाइश नहीं है तो फिर तुम मुझे मेरी माँ के घर छोड़ो। जब वो उसे उसकी माँ के घर छोड़ने जा रहा होता है तो वो रास्ते में ही निकल पड़ती है और उसको लगता है कि शायद वो अपनी माँ के घर चली गई है। मज़ीद आप देखेंगे कि रुहाम की वालदा मुसलसल मलिहा से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका नंबर ऑफ जा रहा होता है। तो तब जब वो रुहाम से पूछती है तो तब वो उसे सारी बात बताता है और कहता है कि मैं मलिहा से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, और तब उसके बारे में गलत बात करता है। तो उसकी माँ मना करती है और कहती है कि मलिहा इतनी अच्छी लड़की है और तुम उसके बारे में गलत बात कैसे कर सकते हो? मैं इसकी इजाज़त तुम्हें बिल्कुल नहीं दूँगी। और मज़ीद वो उसे बताती है कि उसका तो नंबर ही ऑफ जा रहा है, तब रुहाम उसे कॉल करेगा तो वो अपना नंबर डिलीट कर चुकी होगी। तभी रुहाम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो कबीर होता है वो मलिहा के साथ इतना ज़्यादा बुरा सलूक कर रहा होता है, तो तभी सना कहती है कि अगर मेरा इस घर से कोई नहीं है तो मुझे यहाँ से जाने दिया जाए। तभी उसकी सास कहती है कि नहीं, तुम इस घर में ही रहोगी। और जब वो कमरे में आराम कर रही होती है तो कबीर ऊपर से आ जाता है और उसके ऊपर गर्म पानी गिरा देता है। तब बेचारी सारी जल जाती है और तब वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि आपने इसे इस घर में रहने की इजाज़त क्यों दी? इस घर में सिर्फ वही बंदा रह सकता है जिसको मैं इजाज़त दूँ, और इसको अभी के अभी इस घर से निकालें।
تو تبھی उसकी माँ कहती है कि ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, लेकिन वो मजबूर होती है और कबीर के कहने पे उसे घर से जाने का बोल देती है। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। मदीहा रुहाम को हर तरह से यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है और जब से शादी हुई है वो सिर्फ उसी के साथ सिंसियर है, लेकिन रुहाम उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता और मज़ीद उस पे शक किए चले जाता है। और तभी वो कहती है कि अगर तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में कोई गुंजाइश नहीं है तो फिर तुम मुझे मेरी माँ के घर छोड़ो। जब वो उसे उसकी माँ के घर छोड़ने जा रहा होता है तो वो रास्ते में ही निकल पड़ती है और उसको लगता है कि शायद वो अपनी माँ के घर चली गई है। मज़ीद आप देखेंगे कि रुहाम की वालदा मुसलसल मलिहा से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका नंबर ऑफ जा रहा होता है। तो तब जब वो रुहाम से पूछती है तो तब वो उसे सारी बात बताता है और कहता है कि मैं मलिहा से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ और तब उसके बारे में गलत बात करता है। तो उसकी माँ मना करती है और कहती है कि मलिहा इतनी अच्छी लड़की है और तुम उसके बारे में गलत बात कैसे कर सकते हो? मैं इसकी इजाज़त तुम्हें बिल्कुल नहीं दूँगी। और मज़ीद वो उसे बताती है कि उसका तो नंबर ही ऑफ जा रहा है, तब रुहाम उसे कॉल करेगा तो वो अपना नंबर डिलीट कर चुकी होगी। तभी रुहाम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो कबीर होता है वो मलिहा के साथ इतना ज़्यादा बुरा सलूक कर रहा होता है, तो तभी सना कहती है कि अगर मेरा इस घर से कोई नहीं है तो मुझे यहाँ से जाने दिया जाए। तभी उसकी सास कहती है कि नहीं, तुम इस घर में ही रहोगी। और जब वो कमरे में आराम कर रही होती है तो कबीर ऊपर से आ जाता है और उसके ऊपर गर्म पानी गिरा देता है। तब बेचारी सारी जल जाती है और तब वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि आपने इसे इस घर में रहने की इजाज़त क्यों दी? इस घर में सिर्फ वही बंदा रह सकता है जिसको मैं इजाज़त दूँ और इसको अभी के अभी इस घर से निकालें। तो तभी उसकी माँ कहती है कि ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, लेकिन वो मजबूर होती है और कबीर के कहने पे उसे घर से जाने का बोल देती है। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। मदीहा रुहाम को हर तरह से यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है और जब से शादी हुई है वो सिर्फ उसी के साथ सिंसियर है, लेकिन रुहाम उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता और मज़ीद उस पे शक किए चले जाता है। और तभी वो कहती है कि अगर तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में कोई गुंजाइश नहीं है तो फिर तुम मुझे मेरी माँ के घर छोड़ो। जब वो उसे उसकी माँ के घर छोड़ने जा रहा होता है तो वो रास्ते में ही निकल पड़ती है और उसको लगता है कि शायद वो अपनी माँ के घर चली गई है। मज़ीद आप देखेंगे कि रुहाम की वालदा मुसलसल मलिहा से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका नंबर ऑफ जा रहा होता है। तो तब जब वो रुहाम से पूछती है तो तब वो उसे सारी बात बताता है और कहता है कि मैं मलिहा से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ और तब उसके बारे में गलत बात करता है। तो उसकी माँ मना करती है और कहती है कि मलिहा इतनी अच्छी लड़की है और तुम उसके बारे में गलत बात कैसे कर सकते हो? मैं इसकी इजाज़त तुम्हें बिल्कुल नहीं दूँगी। और मज़ीद वो उसे बताती है कि उसका तो नंबर ही ऑफ जा रहा है, तब रुहाम उसे कॉल करेगा तो वो अपना नंबर डिलीट कर चुकी होगी। तभी रुहाम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो कबीर होता है वो मलिहा के साथ इतना ज़्यादा बुरा सलूक कर रहा होता है, तो तभी सना कहती है कि अगर मेरा इस घर से कोई नहीं है तो मुझे यहाँ से जाने दिया जाए। तभी उसकी सास कहती है कि नहीं, तुम इस घर में ही रहोगी। और जब वो कमरे में आराम कर रही होती है तो कबीर ऊपर से आ जाता है और उसके ऊपर गर्म पानी गिरा देता है। तब बेचारी सारी जल जाती है और तब वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि आपने इसे इस घर में रहने की इजाज़त क्यों दी? इस घर में सिर्फ वही बंदा रह सकता है जिसको मैं इजाज़त दूँ और इसको अभी के अभी इस घर से निकालें। तो तभी उसकी माँ कहती है कि ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, लेकिन वो मजबूर होती है और कबीर के कहने पे उसे घर से जाने का बोल देती है। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। मदीहा रुहाम को हर तरह से यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है और जब से शादी हुई है वो सिर्फ उसी के साथ सिंसियर है, लेकिन रुहाम उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता और मज़ीद उस पे शक किए चले जाता है। और तभी वो कहती है कि अगर तुम्हारी
मेरी ज़िंदगी में कोई गुंजाइश नहीं है, तो फिर तुम मुझे मेरी माँ के घर छोड़ो। जब वो उसे उसकी माँ के घर छोड़ने जा रहा होता है, तो वो रास्ते में ही निकल पड़ती है और उसको लगता है कि शायद वो अपनी माँ के घर चली गई है। मज़ीद आप देखेंगे कि रुहाम की वालदा मुसलसल मलिहा से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका नंबर ऑफ जा रहा होता है। तो तब जब वो रुहाम से पूछती है, तो तब वो उसे सारी बात बताता है और कहता है कि मैं मलिहा से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। और तब उसके बारे में गलत बात करता है, तो उसकी माँ मना करती है और कहती है कि मलिया इतनी अच्छी लड़की है और तुम उसके बारे में गलत बात कैसे कर सकते हो, मैं इसकी इजाज़त तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगी। और मज़ीद वो उसे बताती है कि उसका तो नंबर ही ऑफ जा रहा है, तब रूहाम उसे कॉल करेगा तो वो अपना नंबर डिलीट कर चुकी होगी। तभी रूहाम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो कबीर होता है वो कि मलिहा के साथ इतना ज़्यादा बुरा सलूक कर रहा होता है, तो तभी सना कहती है कि अगर मेरा इस घर से कोई नहीं है तो मुझे यहाँ से जाने दिया जाए। तभी उसकी सास कहती है कि नहीं, तुम इस घर में ही रहोगी। और जब वो कमरे में आराम कर रही होती है, तो कबीर ऊपर से आ जाता है और उसके ऊपर गर्म पानी गिरा देता है। तब बेचारी सारी जल जाती है और तब वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि आपने इसे इस घर में रहने की इजाज़त क्यों दी? इस घर में सिर्फ़ वही बंदा रह सकता है जिसको मैं इजाज़त दूँ और इसको अभी के अभी इस घर से निकालें। तो तभी उसकी माँ कहती है कि ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, लेकिन वो मजबूर होती है और कबीर के कहने पे उसे घर से जाने का बोल देती है। दोस्तों मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। मदीहा रुहाम को हर तरह से यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है और जब से शादी हुई है वो सिर्फ उसी के साथ सिंसेयर है, लेकिन रुहाम उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता और मज़ीद उस पे शक किए चले जाता है। और तभी वो कहती है कि अगर तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में कोई गुंजाइश नहीं है, तो फिर तुम मुझे मेरी माँ के घर छोड़ो। जब वो उसे उसकी माँ के घर छोड़ने जा रहा होता है, तो वो रास्ते में ही निकल पड़ती है और उसको लगता है कि शायद वो अपनी माँ के घर चली गई है। मज़ीद आप देखेंगे कि रुहाम की वालदा मुसलसल मलिहा से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका नंबर ऑफ जा रहा होता है। तो तब जब वो रुहाम से पूछती है, तो तब वो उसे सारी बात बताता है और कहता है कि मैं मलिहा से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ और तब उसके बारे में गलत बात करता है। तो उसकी माँ मना करती है और कहती है कि मलिहा इतनी अच्छी लड़की है और तुम उसके बारे में गलत बात कैसे कर सकते हो? मैं इसकी इजाज़त तुम्हें बिल्कुल नहीं दूँगी। और मज़ीद वो उसे बताती है कि उसका तो नंबर ही ऑफ जा रहा है, तब रुहाम उसे कॉल करेगा तो वो अपना नंबर डिलीट कर चुकी होगी। तभी रुहाम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो कबीर होता है वो कि मलिहा के साथ इतना ज़्यादा बुरा सलूक कर रहा होता है, तो तभी सना कहती है कि अगर मेरा इस घर से कोई नहीं है तो मुझे यहाँ से जाने दिया जाए। तभी उसकी सास कहती है कि नहीं, तुम इस घर में ही रहोगी। और जब वो कमरे में आराम कर रही होती है, तो कबीर ऊपर से आ जाता है और उसके ऊपर गर्म पानी गिरा देता है। तब बेचारी सारी जल जाती है और तब वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि आपने इसे इस घर में रहने की इजाज़त क्यों दी? इस घर में सिर्फ़ वही बंदा रह सकता है जिसको मैं इजाज़त दूँ और इसको अभी के अभी इस घर से निकालें। तो तभी उसकी माँ कहती है कि ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, लेकिन वो मजबूर होती है और कबीर के कहने पे उसे घर से जाने का बोल देती है। दोस्तों मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। मदीहा रुहाम को हर तरह से यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है और जब से शादी हुई है वो सिर्फ उसी के साथ सिंसेयर है, लेकिन रुहाम उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता और मज़ीद उस पे शक किए चले जाता है। और तभी वो कहती है कि अगर तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में कोई गुंजाइश नहीं है, तो फिर तुम मुझे मेरी माँ के घर छोड़ो। जब वो उसे उसकी माँ के घर छोड़ने जा रहा होता है, तो वो रास्ते में ही निकल पड़ती है और उसको लगता है कि शायद वो अपनी माँ के घर चली गई है। मज़ीद आप देखेंगे कि रुहाम की वालदा मुसलसल मलिहा से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका नंबर ऑफ जा रहा होता है। तो तब जब वो रुहाम से पूछती है, तो तब वो उसे सारी बात बताता है और कहता है कि मैं मलिहा से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ और तब उसके बारे में गलत बात करता है। तो उसकी माँ मना करती है और कहती है कि मलिहा इतनी अच्छी लड़की है और तुम उसके बारे में गलत बात कैसे कर सकते हो? मैं इसकी इजाज़त तुम्हें बिल्कुल नहीं दूँगी।
اور مزید وہ اسے بتاتی ہے کہ اس کا تو نمبر ہی آف جا رہا ہے، تب روحام اسے کال کرے گا تو وہ اپنا نمبر ڈیلیٹ کر چکی ہوگی۔ تبھی روحام بہت زیادہ ٹینشن میں آ جائے گا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو کبیر ہوتا ہے وہ ملیحہ کے ساتھ اتنا زیادہ برا سلوک کر رہا ہوتا ہے، تو تبھی ثنا کہتی ہے کہ اگر میرا اس گھر سے کوئی نہیں ہے تو مجھے یہاں سے جانے دیا جائے۔ تبھی اس کی ساس کہتی ہے کہ نہیں، تم اس گھر میں ہی رہو گی۔ اور جب وہ کمرے میں آرام کر رہی ہوتی ہے تو کبیر اوپر سے آ جاتا ہے اور اس کے اوپر گرم پانی گرا دیتا ہے۔ تب بیچاری ساری جل جاتی ہے اور تب وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے اسے اس گھر میں رہنے کی اجازت کیوں دی؟ اس گھر میں صرف وہی بندہ رہ سکتا ہے جس کو میں اجازت دوں، اور اس کو ابھی کے ابھی اس گھر سے نکالیں۔ تو تبھی اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو، لیکن وہ مجبور ہوتی ہے اور کبیر کے کہنے پہ اسے گھر سے جانے کا بول دیتی ہے۔ دوستوں، مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ مدیحہ روحام کو ہر طرح سے یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی اور نہیں ہے، اور جب سے شادی ہوئی ہے وہ صرف اسی کے ساتھ سنسیئر ہے، لیکن روحام اس کی کسی بات پہ یقین نہیں کرتا اور مزید اس پہ شک کیے چلے جاتا ہے۔ اور تبھی وہ کہتی ہے کہ اگر تمہاری میری زندگی میں کوئی گنجائش نہیں ہے تو پھر تم مجھے میری ماں کے گھر چھوڑا۔ جب وہ اسے اس کی ماں کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوتا ہے تو وہ راستے میں ہی نکل پڑتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ شاید وہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ روحام کی والدہ مسلسل ملیحہ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا نمبر آف جا رہا ہوتا ہے۔ تو تب جب وہ روحام سے پوچھتی ہے تو تب وہ اسے ساری بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ملیحہ سے بہت زیادہ ناراض ہوں، اور تب اس کے بارے میں غلط بات کرتا ہے تو اس کی ماں منع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ملیحہ اتنی اچھی لڑکی ہے اور تم اس کے بارے میں غلط بات کیسے کر سکتے ہو؟ میں اس کی اجازت تمہیں بالکل نہیں دوں گی۔ اور مزید وہ اسے بتاتی ہے کہ اس کا تو نمبر ہی آف جا رہا ہے، تب روحام اسے کال کرے گا تو وہ اپنا نمبر ڈیلیٹ کر چکی ہوگی۔ تبھی روحام بہت زیادہ ٹینشن میں آ جائے گا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو کبیر ہوتا ہے وہ ملیحہ کے ساتھ اتنا زیادہ برا سلوک کر رہا ہوتا ہے، تو تبھی ثنا کہتی ہے کہ اگر میرا اس گھر سے کوئی نہیں ہے تو مجھے یہاں سے جانے دیا جائے۔ تبھی اس کی ساس کہتی ہے کہ نہیں، تم اس گھر میں ہی رہو گی۔ اور جب وہ کمرے میں آرام کر رہی ہوتی ہے تو کبیر اوپر سے آ جاتا ہے اور اس کے اوپر گرم پانی گرا دیتا ہے۔ تب بیچاری ساری جل جاتی ہے اور تب وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے اسے اس گھر میں رہنے کی اجازت کیوں دی؟ اس گھر میں صرف وہی بندہ رہ سکتا ہے جس کو میں اجازت دوں، اور اس کو ابھی کے ابھی اس گھر سے نکالیں۔ تو تبھی اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو، لیکن وہ مجبور ہوتی ہے اور کبیر کے کہنے پہ اسے گھر سے جانے کا بول دیتی ہے۔ دوستوں، مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔